Assalamu alaikum, all of you here, psychologist Tarika Salwar. So today we have a topic on perception in cognition psychology. Firstly, we discuss about something cognition in psychology. Definition of cognition is the referring of term referring with a mental process involving gaining and a knowledge of comprehensions. Cognitive process in thinking, knowing, remembering, judging, and problem solving. The most important thing in cognitive psychology is the problem solving, judging, remembering, thinking, and a higher level of functions of brain in phases about the language, imagination, perception, and planning. Cognitive psychology is the field of a psychology which is investigate the people thinking process involving in English. कि कैसे कोई इंसान कैसे सोचता है, कैसे वो चीजों को याद रख पाता है, कैसे उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन को जानता है, रिमेम्बर रखता है या जज कर पाता है किसी भी इंसान के लाइफस्टाइल को. What is an example of cognition? Cognition includes all of the conscious and unconscious processes in which the thinking, perceiving, reasoning. Example, cognitive includes reasoning. Example, paying attention to someone in the environment and learning something new, make decision and processing languages, sensing and perceiving environmental stimuli, solving problems and using memory. The example is that in that pattern we define one example. When a person is a live in the one culture and they know about the learning everything about this culture in a on one time, about decision making, about their languages, about their environmental stimuli, problem solving situations, and memory usage. These are the example of cognition. History of the study of cognition. Philosophical origins of Plato is a psychologist who originate the study of cognition. Plato approaches the study of mind, suggests that people understand about the first identifying basic principle buried deep inside themselves. They are rational thoughts to create knowledge. The viewpoints of the advocated by philosophers such as Rennie Desert and a linguistic Noam Chomsky is often the referred. It is a rationalism. These are the philosophers who made the history about the cognition. Aristotle is the most important researcher who researched about the knowledge from the observation of around and later thinking about the John Lake and B.F. Skinner also advocated this point of view about the referred at the empiricism. Early psychology. Early psychology is the first half of the 20th century. Psychology was largely dominated by the psychoanalysis, behaviorism, and humanism. Both three perspectives are used in the early psychology. Eventually form a field of the study devoted solely to the study of cognition, emerged as a part of cognitive revolution in 1960s, and field is known as cognitive psychology. In the 1960s, cognition emerged. Devoted evolutions are created by the different philosophers, different psychologists to evaluate by the early psychology. The emergence of cognitive psychology. Emergence. One of the earlier definition of cognition was presented in the first textbooks of as cognitive psychology was published by 1967. According to the Ulrich Nasser, the psychologist and book authors are of cognition is those who process by which the sensory input is transferred, reduced, elaborated, stored, and recovered and used. These are the main points about the cognition definition in the earlier book of psychology. Types of cognitive processes. There are 6 types of cognitive process: attention, language, learning, memory, and perception and thought. Firstly, we discuss about the attention. Attention is a cognitive process that allows the people to focus on specific stimuli in the environment. किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई, किसी भी स्पेसिफिक थिंग के ऊपर जो है वो अपनी अटेंशन को कॉज करना जो है वो अपनी फोकस को कॉज करना जो है वो अटेंशन कराता है. लैंग्वेज इज अ सिंपल थिंग जिनके जरिए हम किसी भी इंसान के कल्चर को, उसके जो है वो नेचर को और उसकी जो है वो पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं. दैट इज अबाउट द लैंग्वेज are the developmental of cognitive process that involves the ability to understand and express thoughts through spoken, written words,
This allows the communicate and play an important role in thought. Learning is a very important skill in our cognition, because of the learning we know and learn many things about their life, cultures, ideas. Learning requires cognitive process in the taking in new things, synthesizing information, integrate it with prior knowledge. Memory is the also most important cognitive process in which the people allow to the encode about the store and retrieve information. यानी कि हम कोई भी चीज जब याद करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है, और जब भी हम अपनी लाइफ में कभी उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं या दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम रिट्रीव हो जाती है हमारे माइंड में. Component in learning process and allows people to retain knowledge about the world and their personal histories. Perception is the cognitive process that allows to take in information, talk, sense and utilize this information to respond, interact with the world. यानी कि वर्ल्ड के साथ हमारी इंटरेक्शन और हमारी लोगों के इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन और सेंस ऑफ यूटिलाइजेशन को जो है वो रिस्पॉन्ड करने को परसेप्शन कहते हैं. और परसेप्शन और कॉग्निशन के दरमियान जो उनका रोल वो भी पढ़ेंगे. Thought is an essential part of every cognitive process. It allows people to engage decision making, problem solving, higher reasoning. Perception. What is perception? Perception is the ability to capture, process, actively make the sense about the information of sense received by the environment. The cognitive process and makes it possible to interpret in the surrounding of a stimuli, receiving thought, sensory organs, and also makes possible understand surrounding, improve perception, cognition, stimulation. The active process of requires that we process information with both bottom up and top up processing, in which we describe the receiving of passive bottom processing and active bottom top up processing. परसेप्शन एक ऐसी चीज है जो हम अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, अपनी इंफॉर्मेशन से और अपने आइडियाज से जो है हम किसी भी चीज के बारे में एक थॉट, एक थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि या तो पैसिव बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है या एक्टिव टॉप अप प्रोसेसिंग होती है, तो उसे परसेप्शन कहते हैं. टाइप्स ऑफ परसेप्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ परसेप्शन. विजुअल परसेप्शन होती है हमारी किसी भी इंटरप्रेट करने को, लाइट इंफॉर्मेशन विद इन विजिबल स्पेक्ट्रम बाय अराइव्स बाय द आईज. किसी भी चीज को देखते ही जो हम एक थॉट एकदम हमारे माइंड में आ जाती है, वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स V2 के जरिए जो ऑसिपिटल लोब में बनती है, उसको हम विजुअल परसेप्शन कहते हैं. हियरिंग परसेप्शन, किसी भी इंसान के बारे में कोई भी बात सुन लेने के बाद जो हम एकदम थिंक प्रोवाइड अपने माइंड पे जो है वो बिल्ड कर लेते हैं, उसे हम हियरिंग परसेप्शन कह सकते हैं. एबिलिटी टू रिसीव, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड अराइव्स बाय द एयर एंड ऑडिबल frequency wave through the air and another means of sound. The brain part in charge and basic types of auditory perception is the temporal lobe. These are the lobes which are used in the hearing perceptions. Touch is a somatosensory or haptic, which is the capacity of interpersonal information of pressure of vibration received on the surface of skin. यानी कि अगर किसी ने हमें टच किया और उसके टच करने के अंदाज से ही जो है हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को जान लेते हैं, उसकी माइंड में चलती हुई थॉट्स को अक्सर लोग जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम जो है वो टच परसेप्शन में लेकर जाएंगे. Smell or olfactory. Smell and olfactory are also a chemical dissolved substance in the air, which are basic stages of perception done by the olfactory bulb. इसमें भी तो देखिए हमारी जो है वो प्राइमरी olfactory cortex एंड प्रीफॉर्म कॉर्टेक्स जो सेकेंडरी olfactory cortex जो है वो यूज होती है इसके अंदर अबाउट मेकिंग ओवर परसेप्शन. Taste, the ability to interpret information from chemical substance dissolved in salvia. सलाइवा में हमारे जो है वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, और जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाकर हम कहीं कोई किसी के घर पर कोई खाना टेस्ट करते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी प्लेस पर गए लेकिन हम उस पर्सन को इतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उसके खाना बनाने के अंदाज को और उसके खाने को खाने के बाद हम लोग जो है वो समझ जाते हैं कि उस इंसान के जो है वो टेस्ट के जरिए हम उसकी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कितनी स्मूथ है या कितनी जो है वो अच्छी है या बुरी है. हर तरह से हम उसकी पर्सनालिटी को जो है जज कर सकते हैं बाय देयर टेस्ट, बाय आवर टेस्ट. Phase of perception. Phases of perception is not a single process of happens spontaneously. Instead, by the series of phases that take place in order to for correct appreciation
and in stimuli. For example, perceived visual information is not enough to light reflect about the object. ठीक है ना? परसीव्ड जो एक सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट से भी हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को प्रॉपरली जज नहीं कर सकते, ना ही किसी के टेस्ट को लेकर प्रॉपरली जज कर सकते। जो हमें हर चीज के लिए हर जो पर्सपेक्ट है, टच पर्सपेक्ट है, मेमोरी पर्सपेक्ट है, उसके विजुअल पर्सपेक्ट, हेयरिंग, हर चीज के पर्सपेक्टिव को देखने के बाद ही हम किसी पर्सन को जो है वो उसके बारे में एक कंप्लीट परसेप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 3 तरह की चीजें आती हैं परसेप्शन को, फेसेस ऑफ परसेप्शन को चेक करने के लिए। सिलेक्शन, द नंबर ऑफ स्टिमुलाई एक्सपोज्ड बाय द डेली एक्सचेंज और कैपेसिटी। फॉर दिस रीजन वी नीड टू फिल्टर चूज इंफॉर्मेशन वी वांट टू परसीव। This selection is done from our attention, experience, necessities and preferences. देखिए इसमें 4 चीजें आ रही हैं किसी भी पर्सन के जो है वो सिलेक्शन, उसकी सिलेक्शन परसेप्शन को करने के लिए अटेंशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी नेसेसिटीज और हमारी प्रेफरेंसेस। उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके अंदर हम किसी भी परसीव के बारे में जो है वो स्टिमुलाई, जब किसी ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑर्डर में हम किसी की परसेप्शन को जानते हैं, दूसरे लोगों से उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कि नॉट रैंडम नहीं होते, स्पेसिफिक क्राइटेरिया में होते हैं, तभी हम उसकी परसेप्शन को जो है वो क्लियरली कंपाइल करके सेट कर पाते हैं। फिर हम उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करते हैं। तमाम स्टिमुलाई को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम अपनी जो है कंप्लीटिंग परसेप्शन को प्रोसेस करते हैं और मॉड्यूलेट जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन प्रोसेस मॉड्यूलेट ऑफर कर लेते हैं अब हमारी एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद है एग्जांपल ऑफ परसेप्शन। इट इज नॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑन टाइम एनी पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स दैट आर स्टूडेंट माइट हैव। दिस इज अलाउ एंड अप्लाई टू दीज नेसेसिटीज सो ऑन ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन इज लास्ट और विजुअल इंफॉर्मेशन what the professor says and the text of the board and books. These are the example of perception. इसमें जो है वो दी गई है कि हम किसी के पर्सपेक्टिव और प्रॉब्लम को तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम खुद उस चीज की नेसेसरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। उसके बाद करेक्ट परसेप्शन जो है वो हमारे वर्कर एंड जॉब एफिशिएंसी और आर्टिस्टिक एग्जांपल्स के जरिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ग्रेटर लेसर मैनर, सम टाइप ऑफ परसेप्शन, स्वीपर्स, ड्राइवर, डिजाइनर, पॉलिसमैन, कैशियर्स, ये लोग होते हैं जो हमारी परसेप्शन क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर पाते हैं। ये परसीविंग साइन है, बाय द साउंड ऑफ कॉल, बाय द साउंड ऑफ सेफ्टी। इन चीजों के जरिए जो है हम किसी भी इंसान की परसेप्शन को जो है वो परफेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। रोल ऑफ परसेप्शन इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। रोल ऑफ परसेप्शन जो है वो सब डोमेन है अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें परफॉर्म किया जाता है एक्सपीरियंस को इन देयर इन्वायरमेंट के अंदर। इसमें इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट को स्मेलिंग, अरोमा और मील्स के अंदर जो है वो फीलिंग, टच और ऑब्जेक्टिव हियरिंग, साउंड एंड म्यूजिक इन द वंस इन्वायरमेंट के जरिए जो है हम अपनी कॉग्निशन और परसेप्शन को रिलेट करके जो है वो हम एक अपनी इन्वायरमेंटल प्रोसेसिंग को, एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जो है वो हम इलेबोरेट कर पाते हैं। चाहे वो किसी के साथ भी कॉन्शियस इंटरेक्शन हो, किसी फीमेल के साथ, किसी मेल, किसी भी हिजहार के साथ इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन को हम कंप्लीट कर पाते हैं। अनदर रोल ऑफ परसेप्शन इज टू एस्टैब्लिश हाउ स्टिमुलाई आर इंटरेक्ट बाय द वर्ल्ड एंड सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे, और इसमें हमारी ऑल्फैक्टरी आती है, हमारी ऑडिटरी आती है, हमारे जो है टैक्टाइल गैस्ट्री आती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आती है इन्वायरमेंट को यूज करते हुए। इस तरह के परसेप्शन ट्रायल्स जो हैं ये एक्सप्लोर करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ हमारी सेंसरी ऑर्गन्स को, ऑर्डर करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं हमारे जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को। इन एडिशन हम एक्सप्लोर कर पाते हैं जो है मेथड्स ऑफ एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्जेक्टिव कैन बी ऑब्टेन। दीज आर द अनदर रोल ऑफ परसेप्शन एंड कॉग्निशन इन आवर लाइफ इन साइकोलॉजी आल्सो। करंट स्टडी जो है वो परसेप्शन की ये फेस करती है कि बाय द कंबाइनिंग डिफरेंट अप्रोचेस को कंबाइन करने के बाद, जिसमें हम न्यूरोसाइंटिफिक और डेवलपमेंटल और कंसेप्शनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव अप्रोचेस को कंपाइल करने के बाद हमें एक इफेक्टिव ऑब्जर्वेबल परसेप्शन जो है वो रोल ऑफ इंटीग्रेटिव डिफरेंट अप्रोचेस हम बनाते हैं साइकोलॉजी में, जिसके परसेप्शन में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाय द एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इसमें मोरओवर जो है वो डिफरेंट रोल एक्ट किए जाते हैं बाय द विद इन द इन्वायरमेंट, जिससे हम किसी भी पर्सन की
परसेप्शन को एक्सपीरियंस करके इन्वायरमेंट के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। परसेप्शन एक इनेबल है जिसके अंदर हम जो है वो कॉन्शियसली अवेयर कर पाते हैं अपनी स्टिमुलाई को इन्वायरमेंट के साथ। इसमें हम एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं स्टिमुलाई और इन्वायरमेंट का, जिसमें हम जो इन द एंड वी प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलाई इन वंस इन्वायरमेंट, कि एक स्टिमुलाई का एक इन्वायरमेंट में किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, वो कितने नेसेसरी नोट है परसेप्शन फंक्शंस के। इनको टू वेज में जो है वो इसके मेन टू वेज हैं, ये इंक्लूड करता है बॉटम अप प्रोसेस पर और टॉप डाउन प्रोसेस पर, जिसके बारे में हमने जो है वो शुरू में भी पढ़ा था परसेप्शन के अंदर। तो इनेबलिंग जो है वो एक इंटेंस और एबल कनेक्शन है, जो कि लाइंस ऑफ कनेक्टिंग है बाय द क्यूब्स वन सीक टू एक्सट्रैक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिज हर बिलीव्स, हमारे बिलीव्स पर, हमारे गोल्स पर, हमारी नॉलेज पर, हमारी एक्सेप्ट जो है एक्सपेक्टेशंस पर जो है ये तमाम परसेप्शन इन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ कॉग्निशन। कॉग्निशन इंटाइल्स बाय द सेवरल सब डोमेन्स बनती हैं इसकी जो है परसेप्शन के ऊपर, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नॉलेज अबाउट द इंफॉर्मेशन इन वंस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें जो है environment, one's environment is a perception of a role of constructing about the subjective analysis of one's environment and also experiencing the enabling role of play a enable role in his environment। इसमें टच, हेयर, टेस्ट एंड स्टिमुलस जो है ये एक ऐसा रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज और इंटरेक्शंस जो है वो क्रिएट करता है इनकॉन्शियसली वे फॉर हिज हर इन्वायरमेंट, चाहे वो किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो। ठीक है, इसमें बॉटम अप एंड टॉप अप प्रोसेसेस होते हैं। इसमें जो है वो फॉर्मर प्ले वाइल द फॉर्मर प्लेज द रोल ऑफ कनेक्टिंग information that later plays a role of seeking and extracting sensory information based on goals and knowledge, beliefs, and experience. These are all the conclusions about the all learning about cognition and perception in the psychology and cultures also. That's all from my side. Thank you so much. We meet in our next section. Must like, comment, share, and subscribe.